Hello, my dear students and friends. Let's learn with Mr. Power, and this is our first video. And our first topic is parts of speech, that is POS. In parts of speech, we will be discussing noun family today. And in noun family, we will be discussing now what noun actually is. उसके अलावा उसके जो टाइप्स हैं हम वो भी विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. So let's look at noun first. What is noun? Actually, noun is a naming word, a name of any person like Ali, Wakar, Sudhir, name of any person, name of any place like Hyderabad, we can say Larkana, we can say school, home, whatever, or name of things like pen, book, table, door, name of any animals like dog, cat, horse. Even we can also discuss feelings in noun family as well, like happiness, anger, love, freedom, right? You can see these examples like in person, Ali, Mohsin, Prakash. These are persons names. And second place, like you can see Hyderabad, Sindh Museum, Ranikote, things, laptop, mobile phone, animal, and feelings, right? This is a noun. We can say that the noun, entire world is a noun, because in this world everything has got its a particular name. So everything is a noun. And now we have types of noun, right? Here we can have a noun, that is the first one is a common noun versus proper noun, right? The first one is common noun. Common noun क्या होता है? In common noun we always talk about general names of people. हम किसी को स्पेसिफिक नहीं बनाते. जनरल नेम ऑफ पीपल, इवन प्लेसेस और थिंग्स. और जो कॉमन नाउन होते हैं दे नेवर स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, राइट, अनलेस द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस. जब तक हम सेंटेंस की स्टार्ट की बात ना करें. सपोज एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक बॉय. Boy can be anyone, we cannot specify them. Even city can be anyone. It is a general. Book is a general. Mountain or school can be anyone. There are so many schools. Film can be anyone. The second one is proper noun. Proper noun is specific names of people, places or organizations. और ये जो है वो हमेशा स्टार्ट होते हैं हमारे कैपिटल लेटर्स से. लाइक इन कॉमन नाउन हमारे पास एग्जांपल है बॉय, और इन प्रॉपर नाउन वी हैव लाइक कासिम, एंड कासिम इज अ प्रॉपर नाउन. इट इज अ नेम ऑफ अ बॉय, अ पर्सन. इन कॉमन नाउन वी हैव सिटी कैन बी एनीवन. जर्नल, and in proper noun we have Karachi. Karachi is a particular name of city of Sindh. And in common noun we can say university. A university can be anyone. In proper noun we have Oxford University, and an Oxford University is a proper noun. In common noun we have a day, and in proper noun we have Monday, right? Or school. In common noun it is general,
and in proper noun we can say Hayat School, and Hayat School is a proper noun, एक specific name है, right? आई होप आपको समझ आ रहा है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बहुत सारी वीडियो आपको कॉन्सेप्चुअली मिलेंगी हमारे पेज पे लर्न विथ मिस्टर पंवर। तो आपको अगर पसंद आ रहा है, समझ भी आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड द सेकेंड वन इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये भी नाउन के टाइप्स हैं। काउंटेबल नाउन्स में क्या होता है, थिंग्स दैट वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स, राइट? वो नाउन्स जो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्या यूजिंग नंबर्स, और इनके हमारे पास फॉर्म्स होते हैं जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। वो होते हैं हमारे पास काउंटेबल नाउन्स जो कि हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स के थ्रू। नंबर्स के थ्रू कैसे? सपोज वी कैन यूज़ नंबर्स लाइक 1 2 3 and 4 5 ऐसे करके, लाइक 1 एप्पल, 3 पेन्स, मैनी स्टूडेंट्स। ये सारे क्या है? काउंटेबल है, जो कि हम काउंट कर सकते हैं विथ नंबर्स। अच्छा, सेकेंड वी हैव अनकाउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट विद नंबर्स, जो कि हम नंबर्स से काउंट नहीं कर सकते, और इनके हमारे पास फॉर्म्स भी नहीं होते, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स। लाइक वाटर, तो हम 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर नहीं बोल सकते नंबर्स के थ्रू। तो ये है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। लाइक मिल्क, और 1 मिल्क है मेरे पास, मेरे भाई के पास 2 मिल्क हैं, ऐसे हम कभी नहीं बोलते। तो ये नंबर से काउंट नहीं कर सकते। इज़ लाइक शुगर, एयर, ऑनेस्टी, राइट? तो ये हमारे हैं दोनों countable and uncountable nouns. Moving forward, we have concrete and abstract nouns. Concrete nouns वो होते हैं things that you can physically see or touch, जो ये भी कर सकते हैं, इवन टेस्ट भी कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल्स क्या है? चेयर को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। फ्लावर है हमारे पास फ़ोन है, कंप्यूटर है, ये हमारे पास होते हैं concrete noun. And then we have abstract noun. Abstract nouns क्या होते हैं? They are actually ideas, feelings or qualities. And abstract noun को you cannot even touch, see physically, right? Like happiness, और happiness को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। लव, ब्रेवरी है हमारे पास, इवन टाइम, फ्रीडम, ये चीज़ें हम, ऑनेस्टी, ये चीज़ें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नंबर 4 वी हैव कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? दे आर वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, लेकिन कैसे? एज अ सिंगल यूनिट। और ये सिंगल यूनिट की प्लेस, सिंगल यूनिट यूज़ होता है, लेकिन दे शो अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स। लाइक थीम, अ थीम ऑफ प्लेयर्स। लाइक थीम तो है हमारे पास, लेकिन एक वर्ड है, और ये एक वर्ड ग्रुप ऑफ पीपल को शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक क्या है? फ्लॉक तो एक वर्ड है, एक यूनिट है, लेकिन ये शो कर रहा है कि इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव फॉर्म है किसका? बर्ड्स का। जैसे हमारे पास होता है क्लास, तो क्लास तो एक यूनिट है, एक वर्ड है, लेकिन ये कलेक्टिव है। क्लास में क्या होता है? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होता है, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ये एक सिंगल यूनिट शो हो रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड होता है, राइट? जैसे होता है हमारे पास ऑडियंस, जैसे हमारे पास होता है स्टेडियम। तो ये क्या है? ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। आ रहा है समझ? आई होप। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव मटीरियल नाउन्स। दीज रेफर टू अ रॉ मटीरियल्स, जो कि जिस मटीरियल से हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मटीरियल। हमारे इसमें नेम में ही लिखा हुआ है मटीरियल।
जैसे वुड है हमारे पास, वुड से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें और भी बन सकती हैं, जैसे आयरन है, कॉटन है, तो दिस इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास कंपाउंड नाउन्स। और कंपाउंड का मतलब होता है वो चीज़ें जो कि दो और तीन मिलके एक दूसरी चीज़ बनाए, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? दीज आर नाउन्स मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल मीनिंग। एक वर्ड बनाते हैं लेकिन दो या तीन वर्ड्स मिलकर। जैसे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है टूथ बुश, ये दो वर्ड्स हैं। टूथ एक वर्ड और देन वी हैव बुश, ये दोनों मिलके एक वर्ड बन गया जिसकी मीनिंग भी एक है, ठीक। और हमारे पास है मदर इन लॉ, तो एक वर्ड ये बन गया, तीन वर्ड्स हैं, एक वर्ड बन गया, उसकी मीनिंग भी एक ही है, मदर इन लॉ। और देन वी हैव स्विमिंग पूल, एंड स्विमिंग पूल में हमारे पास दो वर्ड्स हैं लेकिन इनकी मीनिंग एक है, ये दोनों एक ही वर्ड बन गया। अच्छा, देन वी हैव हेडफोन्स लाइक दिस, इन सबको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। आर यू गेटिंग? ये हमारे पास है नाउन एंड इट्स फैमिली, एंड इट्स फैमिली में क्या है हमारे पास 6 इनके टाइप्स हैं। After listening this video, you will be having a general test, that is objective test first. हमारे पास 10 है MCQs जो कि आपको बहुत सारी जॉब्स की टेस्ट में मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लाइक फ्रॉम नाउन वी हैव विच, the first question is which of the following is a proper noun। अच्छा, इन तीनों में से कौन सा प्रॉपर नाउन है? the first one is teacher, London, and then we have school। तो प्रॉपर नाउन कौन सा है? we have learned that प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो होता है जो कि स्पेसिफिक प्लेसेस को, स्पेसिफिक पर्सन्स के बारे में बताता है। लाइक टीचर, टीचर कैन बी एनीवन, कौन सा टीचर? ये हमारा हो गया जनरल कॉमन। लाइक वी हैव स्कूल, स्कूल कैन बी एनीवन, कौन सा स्कूल है? स्कूल तो बहुत हैं। अच्छा, तो ऑप्शन बी इज लंदन। लंदन इज अ सिटी, एंड सिटी का एक नेम है स्पेसिफिक, दैट इज लंदन, एक स्टेट है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। उसके बाद a flock of birds flew overhead। What kind of noun is flock? Flock कौन सा नाउन है? क्या है हमारे पास? फ्लोक ऑफ बर्ड्स हैं, बर्ड्स का एक क्या है? ग्रुप है फ्लॉक। तो ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं कौन से नाउन में? डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं होता, प्रॉपर नाउन तो नहीं होता। वी हैव कलेक्टिव नाउन, एंड कलेक्टिव नाउन में हम ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनी प्लस एनी बर्ड्स, वो हम डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन में, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं, वाटर, बुक एंड चेयर। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? वो नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते विद नंबर्स, राइट। चेयर काउंट कर सकते हैं, 1 चेयर, 2 चेयर्स, 1 चेयर, 2, 3, 4। बुक काउंट कर सकते हैं, 1 बुक है हमारे पास, 2 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, 20 बुक्स हैं। वाटर काउंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट वाटर विद नंबर्स, 1 वाटर, 2 वाटर, 5 वाटर्स नहीं कर सकते। तो दिस वन इज अनकाउंटेबल नाउन, राइट। नंबर 4th वन इज आइडेंटिफाई कंपाउंड नाउन। यहाँ 2 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शंस हैं।
टूथब्रश, पेन एंड माउंटेन। कंपाउंड नाउन फाइंड करना है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? वो नाउन जो कि 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बनाए जिसकी मीनिंग भी सिंगल हो। जैसे वर्ड है टूथब्रश, टूथ एक वर्ड है और ब्रश एक दूसरा वर्ड है, ये दोनों वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं और जिसकी मीनिंग भी एक है। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड नाउन। मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट वन, ये मैं 5 आपके लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट 5 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए हैं, ये आप खुद करें। द 5 वन इज द म्यूजिक वॉज ब्यूटिफुल। व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज म्यूजिक? म्यूजिक जो है वो कौन सा नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वो जो ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, पीपल हो, वो एक सिंगल यूनिट में बताए उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। कॉन्क्रीट तो आपको पता ही हो गया। अच्छा, तो विच वन इज करेक्ट वन? नंबर सी इज करेक्ट वन बिकॉज म्यूजिक इज अ कलेक्टिव नाउन। म्यूजिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड फ्रॉम 6 to 10 ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व करें, देखें, चेक करें कि आपको कितना समझ आया है नाउन एंड इट्स टाइप्स। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका होमवर्क है। क्या करना है? आपने नेम देना है बोल्ड वर्ड्स को। ठीक, ये सब जो बोल्ड वर्ड्स हैं ये काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं, आप इनको नेम दे दें कोई भी। सपोज मैं दे रहा हूँ, द फर्स्ट वन इज लेट अस ईट सम फ्रूट्स। फ्रूट्स बोल्ड है, इसको मैंने क्या करना है? नेम देना है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन की फैमिली से। कौन सा नाउन है? ये है काउंटेबल नाउन। राइट, काउंटेबल नाउन है हमारा, काउंट कर सकते हैं फ्रूट्स को। अच्छा, नंबर 2 है दिस टाइप ऑफ ऑरेंज इज नोन फॉर इट्स स्वीटनेस। स्वीटनेस क्या है? बोल्ड वर्ड है, इसको हमने नेम देना है काइंड्स ऑफ नाउन से। तो स्वीटनेस क्या होता है? स्वीटनेस हमारी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते स्वीटनेस को। राइट, ये दोनों मैंने कर दिए हैं। ये बाकी जो रिमेनिंग है ये आपका होमवर्क है। अच्छे से वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। राइट, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। एंड आफ्टर डूइंग ये एक्टिविटी आप करें, ये होमवर्क आप करें और ये कमेंट में आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।